Hello everyone, welcome to Northeast PSC, most trusted brand of Arunachal Pradesh. So myself Shashidhar, I will be your faculty for UPSC Civil Services. I'll be taking your subject polity. Okay. So today I'll be taking a topic that is important topic of one of the important topic of UPSC prelims as well as mains, and even if you're preparing for other exams also, then we'll also see the topic of this topic. Okay, see, I'll be taking one of the important topic, which is a preamble. So talking about preamble, I'll say preamble is important in prelims as well as mains. Yes. So even in UPSC, generally one or every alternate year, you will see some question which is related to prelims of preamble. Okay, so preamble. So generally in every alternate year, you will be seeing a question that is on a preamble, and mains you will see some 3 or 4 year. You will see in UPSC. I'm talking basically about UPSC. So you will see some question on mains also about preamble. Okay. So let's start without wasting some time. We'll start with the preamble. Okay. See. So have you wondered about, guys, when you are in school, for example, class 6, 7, 8, 9, 10, or whether you have studied from CBSE, that is central board, or you have studied from your state board, like this Arunachal state board or Assam state board. Okay. So have you remember, like in your class 6, 7, 8, आपको ना हमेशा you have a textbook, and textbook के before there is a page, that is one page, and that shows up, that is the preamble. मतलब even preamble is also mentioned in your every notebook, every textbook of your class. So like constitution maker, जो constitution बनाते थे, जो constitution बना रहे थे, they wanted to you that the young aspiration, that young people, future leader of the country would also understand the each and every value of a constitution. So are you getting? So preamble, even the preamble is imbibed in your class 6, 7, 8, 9, 8 textbook also. So preamble is such important thing that वो आपको क्लास के 6, 7 बुक में भी दी हुई है, तो आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा. तो वही preamble हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आपने क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में भूल गए थे. समझ रहे हैं? So preamble, चलिए preamble की बात करें. So I'll be taking, like for example, दिस इज योर घर. ये आपका क्या है? घर. सो घर में क्या होता है कि ये आपका क्या है? गेट है. क्या है? गेट है. सो प्रीएम्बल इज एग्जैक्टली सिमिलर टू योर गेट. सिमिलर टू योर गेट. फॉर एग्जाम्पल, जो भी आप घर में रहते हो, अपार्टमेंट में रहते हो, हाउस में रहते हो, उस हाउस या अपार्टमेंट का जो गेट है, दैट इज फ्रंट गेट. तो फ्रंट गेट इज इक्वल टू अ प्रीएम्बल. इट मीन्स व्हाट? प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी है. क्या आपका जो आपका गेट है, इज योर गेट इज अ पार्ट ऑफ योर अपार्टमेंट? यस. बट क्या उससे कुछ इम्पैक्ट होता है? कोई दिक्कत होती है कि आपका घर में कितना डायमेंशन का एरिया वगैरह है, आपका हॉल कितने का, उससे कुछ इम्पैक्ट होता है? नहीं. सो वैसे ही प्रीएम्बल सिमिलर टू, इट इज द फ्रंट, इट इज द एंट्रेंस ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन. सो इफ आई से प्रीएम्बल इज, अगर प्रीएम्बल बिल्ड, इफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर एक अपार्टमेंट, एक बिल्डिंग है, सो प्रीएम्बल इज सिमिलर टू व्हाट? प्रीएम्बल क्या है? प्रीएम्बल एक आपका गेट है, दैट इज फ्रंट गेट. ओके. अगर एनके पालकीवाला की बात में कहें, सो एनके पालकीवाला वाज द जूरिस मेंबर. ही यूज्ड टू से कि इट इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. क्या है? आइडेंटिटी कार्ड. किसने बोला था? एनके पालकीवाला. ओके. आई एम ऑडिबल? यस. थैंक यू. सो एनके पालकीवाला यूज्ड टू से इट इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो सिंपली आई विल I will make more clear to you that preamble is the aspiration, is the ideal, is the inspiration of youth that constitution maker wanted कि वो आपके अंदर imbibe. It is what? It is a summary of the constitution. So it is can also be said that what preamble क्या है? Summary है. क्या है preamble? Preamble is a summary of the constitution. So आपको जो एस्पिरेशन, द नोशन दैट यू आर एबल टू सी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन पूरे आर्टिकल्स में लिखे होंगे, उसका ये समरी है. ठीक है. सो प्रीएम्बल क्या है? इट इज अ समरी, इट इज अ नोशन, इट इज द इंस्पिरेशन दैट कि कैसा कॉन्स्टिट्यूशन में बनाना है. तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर की क्या इच्छा थी, क्या तमन्ना थी, कैसा देश बनाने की तमन्ना है, वो ये चाहते हैं कि
आपको प्रियम्बल द्वारा दिखे। आई होप यू आर गेटिंग गाइस, यस, थैंक यू। प्लीज डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन कि if you are understanding, so you please let me know, okay? I hope you are getting, yes, okay. See, I'll say preamble, talking about preamble rules regulation. For example, आपको voting rights दिया, शाबाश, कभी दिया voting right? Okay, so your voting right is at the age of 18, ठीक है? तो can anybody comment in comment section में कोई लिख सकता है कि voting rights आपको 21 ईयर से 18 ईयर कब किया है? Very good. Yes, Sarvesh, very good. Soumya, yes, very good. Yes, very good. So it is what? It is by the 61st Constitution Amendment Act 1989, which was in 1988, but Act बनते 1989 हो गया. So you will see in questions that it will, if in options you will see 1989, do tick to 1989. So 1989, 61st Constitution Amendment Act 1989, you got the voting right. तो आपको वोटिंग राइट भी कहाँ से मिल रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन से दे रहा है। रूल्स रेगुलेशन आपको कहाँ से मिलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन से मिलेगा। तो इन अ सिमिलर मैनर आपको जो भी पावर से एवरी पावर यू आर गेटिंग थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली, ओके? एंड द प्रीएम्बल इज अ समरी, इज द इंस्पिरेशन। इवन इफ इन माय वर्ड्स आई वुड मोर क्लैरिफाई टू यू, if it is the 3I, okay? So in my word, it is what? It is 3I. So 3I means what? It is the intent, ideal, and identity. Sorry guys. The people, please make sure that you are attentive in the class. See, आप जब घर पे बैठे हो या ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो आपका हमेशा दिक्कत होती है कि आप कंफर्टेबल बैठे नहीं हो, आप कहीं बेड पे क्लास ले रहे हो, कहीं और चीज़, तो मेक श्योर यू आर सिटिंग कंफर्टेबली इन योर पोजीशन। दैट इज फॉर एग्जांपल आप टेबल पे बैठो तो टेबल पे बैठ के कंटिन्यू क्लास लीजिए, ठीक है? आप बार बार उठने की कोशिश मत कीजिए। सी, सो इन माय वर्ड्स, लाइक इन माय वर्ड्स आई विल से योर प्रीएम्बल इज व्हाट? इट इज द इंटेंट, इट इज शोइंग द इंटेंट। इंटेंट मतलब नियत, कहते हैं ना कि आपका नियत साफ होगा तो आपका काम अच्छा होगा। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम आल्सो, तो योर नियत शुड बी व्हाट? देश के लिए कुछ करना है। किसके लिए करना है? देश के लिए। अगर अपने लिए सोच रहे हो तो दिक्कत होगी, समझ रहे? सो इंटेंट इज व्हाट? हाँ, इंटेंट इज व्हाट? योर नियत। तो आपका जो नियत है वो बस कहाँ दिखेगा? इट इज शोन इन द प्रीएम्बल। तो कॉन्स्टिट्यूशन की नियत कहाँ दिखती है? प्रीएम्बल में। आइडियल मतलब देश, कैसा देश बनाना है, हमें कैसे देश बनाने की इच्छा है, कैसे देश की, ठीक है, तो कैसे देश बनाने की इच्छा है, हमारी क्या सपने हैं, सो वो आइडियल इंस्पिरेशन कहाँ झलकता है? प्रीएम्बल में, ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर की तमन्ना, उनकी इच्छाएं कहाँ झलकती है? कैसे देश की तमन्ना। तो इवन जब आपकी क्लास 6, 7, 8 बुक में आपको प्रीएम्बल दिया भी हुआ, इट मींस व्हाट? हर बच्चा चाहे, हर बच्चे को पता हो कि हमें कैसा देश बनाना है, हम कैसे देश हैं, हमें कैसे देश बनाना है, तो दैट शोज योर प्रीएम्बल, ओके? So the country, how we are, the country how we are as of now, how the country how we want to become later, so it shows the preamble. I hope you are getting, yes, yes, very good, yes, shabash. चलिए आइए, be active in the class. See, so intent, ideal and identity shown in the constitution. कहाँ दिखता है आपको? प्रीएम्बल में। किसकी भाषा में? शशि सर की भाषा में। शशि सर की भाषा में कहने वाला, so even you can utilize this lines, 3I can be utilized in what? It can be utilized in, it can be utilized in your means, it can be utilized in your means. तो चीजें जहां पे मिले आप समेटते चलें, ठीक है? So second, we'll move ahead, we'll understand later terms. चलिए, so we the people. तो again I am asking you question, please do comment in comment section कि कॉन्स्टिट्यूशन बना, प्रीएम्बल लिखा, आपसे पूछा? नहीं पूछा? कोई नहीं, मैं पूछता हूँ। तो आज आपसे पूछा क्या उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन? आप तो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे, शायद मैं भी नहीं पैदा हुआ था। यस, वी हैवंट टेक द बर्थ दैट टाइम। सो ड्यूरिंग दैट टाइम आल्सो नोबडी आस्क अस। क्या किसी ने हमारे दादाजी से पूछा रहेगा? मुझे नहीं लगता। सर्वेश पूछा था, हाँ शायद। सी, समबडीज ग्रैंडफादर में हैव बीन लाइक पार्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, बट मेरे दादाजी से नहीं पूछा। सो लाइक आपको दे हैवंट आस्क अबाउट, किसी ने आपसे पूछा नहीं कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे, कि आपसे पूछेंगे मे बी योर, बट नोबडी आस्क यू आल्सो, या उस समय भी किसी ने नहीं पूछा। किससे पूछा गया है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब इट मींस व्हाट? द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, दोज हैव
दोज हैव रिटन द कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, द फ्रीडम स्ट्रगलर, उन्होंने क्या बोला, हम अपने देश की जनता के बिहाफ पे हम कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं। आर यू गेटिंग? तो मतलब who is the source authority of the constitution? कौन है source authority? It is who? We have given the power our constitution maker कि आप constitution लिखो। तो किसने दिया अधिकार? आपने नहीं दिया, उन्होंने खुद से ले लिया आपसे कि आप और आपके आने वाले जनरेशन, द नेक्स्ट जनरेशन विच यू हैव, लाइक आफ्टर जनरेशन, उन्होंने पहले से ही उनके बिहाफ पे दे हैव टेकन कि वी द पीपल ऑफ इंडिया विल given the right to you people, the freedom, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो लिख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, उनको हमने क्या दिया, राइट्स दिया है कि सो दैट दे कैन राइट अ कॉन्स्टिट्यूशन। और उन्होंने हमसे क्या लिया, अधिकार लिया है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन लिखिए। तो कैसा देश बनाना चाहते हैं, कैसा देश हो? I'll erase this part, just a second, okay, ठीक है, I'll erase this part, I need some space here, ठीक है। People, please make sure, I'll share the PDF also to you, and if you need it, please make sure I'll share the PDF, and please when you're sitting in the class, आप कुछ ना कुछ लिखते रहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे कहने पे PDF की वजह से, ठीक है। आइए इधर देखते हैं, ठीक है। सो हमें कैसा देश बनाना है? सवरन देश बनाना है। कैसा देश बनाना? सोशलिस्ट देश बनाना है, सेकुलर देश बनाना है, और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक देश बनाना है। सो हम देखेंगे कि सवरन क्या होता है। सी, इसके पहले आई थिंक वी हैव अंडरस्टूड वन थिंग कि किसने राइट्स दिया। यस, किसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए अधिकार दिया आपको? कौन लिखने के लिए बोला? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैज गिवन द, वी आर द सोर्स ऑफ अथॉरिटी, वी हैव गिवन द राइट्स कि आप कॉन्स्टिट्यूशन लिखिए। अच्छा, कैन एनीबॉडी कमेंट इन द सेक्शन, कैन एनीबॉडी कमेंट इन द सेक्शन कि कॉन्स्टिट्यूशन कब से लिखना शुरू हुआ है? यस, प्लीज बी एक्टिव, प्लीज डोंट गूगल, आई एम सीइंग यू गाइस। दिख रहे हो आप लोग हमें स्क्रीन पे? वेरी गुड। इट इज व्हाट? 9 दिसंबर 1946। 9 December 1946 we have set, the constitution maker was set, they set together और उन्होंने constitution लिखना शुरू किया। क्या can anybody write in a comment who was the president during that time? Who was the president during that time? पट्टभी सीतारामैया, ठीक है। So 9 this मुझे भी पता है एक्चुअली वो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा है, ठीक है, पट्टभी सीतारामैया नहीं है। आई वाज जस्ट चेकिंग कि आपका टेंशन है क्या नहीं। प्लीज मेक श्योर, डू नॉट लाइक मैं कुछ बोल रहा हूँ तो यू शुड ऑल्सो बी वेरीफाइंग। मुझे तो पता ही, बस आई वाज जस्ट चेकिंग यू पीपल कि आप लोग का ध्यान है कि नहीं। सो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ही वाज फ्रॉम बिहार, तो ही बिकेम द फर्स्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। And this question is asked in UPSC 2024, ठीक है। आप UPSC का क्वेश्चन देखेंगे तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा टेम्पररी प्रेसिडेंट। इसके बाद कौन बना है? वेरी गुड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। सो सी, आपका ध्यान भी रहना चाहिए, इवन जब आप यू शुड मेक श्योर कि आप यू प्लीज बी एक्टिव इन द क्लास, और जो चीजें आपको पूछी जा रही हैं वो आप कमेंट करिए, ठीक है। आपका एक्टिवनेस इट विल मोटिवेट मी कि मैं आपके साथ एंगेजिंग और रहूं, ओके। So sovereign is what? चलिए देखते हैं। So हमें कैसा देश बनाना है? SSSDR। कैसा देश बनाना है? SSSSSDR। Sovereign, Socialist, Secular, Democratic and Republic। मैं आपको 5 लाइन में क्यों लिखा रहा हूँ? आई एम मेकिंग श्योर कि एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता कि ये अरेंजमेंट कैसा है इनका, ठीक है। तो Sovereign, Socialist, Secular, Democratic and Republic। सी, एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे 1 लिखा है और यहाँ पे 2 लिखा है। सो मतलब इसका मतलब जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन में, व्हेन यू आर सीइंग द कॉन्स्टिट्यूशन, आप पीडीएफ भी अगर कभी पढ़, आई विल शेयर द पीडीएफ विद आल्सो कॉन्स्टिट्यूशन का, जब भी आपको ब्रैकेट में ऐसा कुछ रहेगा तो इसका मतलब वो अमेंड हुआ है। क्या हुआ है? अमेंड मींस, अमेंडमेंट मींस व्हाट? कि वो चीज में बदलाव आया है, कभी आया बाद में 2 3 4 साल 5 10 साल बाद इट हैज बीन कि वहां अमेंडमेंट हुआ है। तो आपको एक और चीज सी, आप बारीकी से देखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है 1 और 2। तो जब भी कॉन्स्टिट्यूशन का भी आप पीडीएफ पढ़ते हो, आई विल शेयर द पीडीएफ आल्सो। सी, जब भी आप ब्रैकेट में रख रहे हो तो इसका मतलब क्या होता है? इट मींस व्हाट? कि ये चीजें अमेंड हुई है। यहाँ पे भी अमेंडमेंट हुआ, यहाँ पे भी अमेंडमेंट हुआ,
ठीक है, चलिए विल कंटिन्यू विद दिस सवरन पार्ट। ठीक है, सो व्हाट डू यू मीन बाय सवरेनिटी? यस सवरन, यस आजादी। Sovereign means freedom. So we as a independent, we are the independent country, yes or no? Yes, sure, yes. We are, क्या हमें किसी से पूछना पड़ता है? हम कुछ अपना रूल्स रेगुलेशन लाते हैं? क्या हम टैरिफ किसी पे लाएंगे तो पूछना पड़ेगा? नहीं ना? क्या हम अपनी, अगर हम अपनी राइट्स, कैन वी शेयर आवर लैंड टू अदर कंट्री? कैन वी गिव? हाँ दे सकते हैं। क्या हम उनसे ले सकते हैं? ले सकते हैं, बहुत सही, वेरी गुड। सो हम सॉवरेनिटी मींस व्हाट? वी आर द इंडिपेंडेंट कंट्री, हम किसी का डोमिनियन स्टेटस भी नहीं है। डोमिनियन मतलब व्हाट? कि सी एक डोमिनियन होता है, डोमिनियन मतलब आपके मेजर राइट्स यू हैव, आप अपना काम कर, मेजरली थिंग योर, बट आपका जो फॉरेन अफेयर्स है, आपका एक्सटर्नल राइट्स है, डिफेंस है, इट इज टेकन बाय द अदर अथॉरिटीज। फॉर एग्जांपल इंडिया हैज बीन डोमिनियन स्टेटस 1949 के टाइम पे, एक साल के ऑलमोस्ट 1949 तक डोमिनियन था इंडिया, और इवन पाकिस्तान हमसे ज्यादा है, पाकिस्तान 1956 तक डोमिनियन स्टेटस में रहा। डोमिनियन मतलब कि आपका क्या है, आप पे मेजर जो आपके इंटरनल होम अफेयर्स है, यू आर मैनेजिंग देम, बट जो एक्सटर्नल अफेयर्स है दे आर मैनेज बाय अदर, लाइक ब्रिटिश मैनेज कर रहे थे। तो सॉवरेनिटी मींस व्हाट? कि आपके लाइक यू आर द इंडिपेंडेंट कंट्री, यू डोंट वांट टू आस्क एनीबॉडी कि आप क्या कर रहे हो। आपको चांद पे जाना है, हमने मिशन मंगल जो हमारा था, हमने वो किया, किसी से पूछा नहीं। हम चंद्रयान 2-3 चल रहा है, हमने किसी से पूछना नहीं, हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। लाइक वी आर द इंडिपेंडेंट कंट्री, वी डोंट हैव टू आस्क एनीबॉडी कि हमें ये करना है कि नहीं। सो वी आर द सॉवरेन कंट्री, वी आर द इंडिपेंडेंट कंट्री। हाउएवर we are also the member of United Nation. So United Nation से हमसे United Nation से पूछना पड़ेगा क्या हमें? नहीं। हम अगर कुछ फॉर एग्जाम्पल हम रफाल डील कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम इवन वी हैव अ लैंड एग्रीमेंट विद दी बांग्लादेश, यस 100 ऑफ इनक्लेव्स वी हैव साइंड, दैट इज 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, यस। तो 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज साइन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, और हमने बहुत सारे अपनी जमीनें, अपने लैंड्स दिए हैं किसको? बांग्लादेश को। Are you getting? So it means what? We have given a several lands enclaves a bit to Bangladesh, और उन्होंने भी उसके बदले हमें दिया है। तो हम अपना जो इंडिया है, जो हमारी इंडिया है, उसकी टेरिटरी को हम बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इट्स अप टू अस, दैट इज व्हाई वी आर अ सॉवरेन कंट्री। हम यूनाइटेड नेशन का मेंबर है, यस और नो? यूनाइटेड नेशन का मेंबर है, यस। We are the member of United Nation, and also it does not means that we have to bind anything from the United Nation. कि United Nation ने बोला कि इंडिया तुम्हें ये करना है, नहीं करेंगे, हमारी मर्जी। यूनाइटेड नेशन ने बोला कि टैरिफ बढ़ा, कुछ हमारे ऊपर लाइक वर्ल्ड ट्रेड का कुछ नियम लगा दिया, तो हम उसको माने ना माने हमारे ऊपर। So even we are the member of United Nation, but it does not means what? कि हमें फिर भी यूनाइट मतलब उसको बाइंड ही करना है, हम अपनी मर्जी से ही चलेंगे। एक और चीज, वी आर ऑल्सो द मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ। हाँ वेरी गुड, कॉमनवेल्थ से कॉमनवेल्थ गेम्स याद आ गया, ठीक है। सो कॉमनवेल्थ कंट्री होती है। सो कोई मुझे बता सकता है कॉमनवेल्थ कंट्री क्या हो सकती है? यस सर्वेश ने लिखा, वेरी गुड। सो सर्वेश है, इवन सर्वेश को भी पता है, आपको भी पता होना चाहिए। सो कॉमनवेल्थ कंट्री इज व्हाट? कॉमनवेल्थ कंट्री इज अ कंट्री विच इज ब्रिटिश ने जिसको कॉमनली लूटा है, समझ रहे? कॉमन मतलब क्या होता है? कॉमन, जब आप क्रिकेट खेलते थे आपको याद है, यहाँ पे 5 खिलाड़ी रहते, आपकी गली में जब आप क्रिकेट खेलते थे तो यहाँ पे 5 खिलाड़ी हैं, 5 खिलाड़ी इस तरफ है, लेकिन एक खिलाड़ी आ गया, उसको क्या करना है? तो उसको कॉमन में रखना है, समझ रहे हो? सो कॉमन वो होता है कॉमनवेल्थ कंट्रीज। तो कॉमनवेल्थ कंट्री आर द कंट्री जिसको ब्रिटिश ने कॉमनली लूटा है। किसने लूटा है? ब्रिटिश ने कॉमनली लूटा है। द कंट्री, जिस कंट्री को ब्रिटिश ने कॉमनली लूटा है उनको क्या बोलते हैं? कॉमनवेल्थ कंट्रीज। और उन कंट्रीज का गेम्स खिलाया जाता है, वो गेम्स का नाम है कॉमनवेल्थ गेम्स। आर यू गेटिंग? सो कॉमनवेल्थ, हम कॉमनवेल्थ कंट्रीज में हैं। एक ग्रुप है कॉमनवेल्थ कंट्री का, जैसे ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान है, बहुत सारी का, बांग्लादेश वगैरह सारी कंट्रीज है जो ब्रिटिश ने, जिसको कनाडा हो गया। सो ब्रिटिश ने जिस कंट्री पे राज किया है उन कंट्री को एक ग्रुप में रख दिया, उस ग्रुप का नाम है कॉमनवेल्थ कंट्री। हम उसके मेंबर हैं, यस वेरी गुड, हम कॉमनवेल्थ कंट्रीज के मेंबर हैं, बट इट डज नॉट मीन्स कि हमारी सॉवरेनिटी लूज हो रही है।
तो sovereignty means a sovereign, we are the sovereign country means we are the independent country. Yes, we are the independent country. हमारा डोमिनियन था, हम डोमिनियन थे, लेकिन वो उस टाइम 1949 के बाद खत्म हो गया, ठीक है. देन वी बिकम इंडिपेंडेंट कंट्री. एंड देन हम क्या अपनी टेरिटरी को कम कर सकते हैं? कर सकते हैं, थोड़ी दे दीजिए. फॉर एग्जांपल अभी श्रीलंका से भी हमने कच्छवीला आइलैंड का हमने वो डिस्प्यूट सॉल्व किया है. बांग्लादेश से भी 100 एनक्लेव्स हमने साइन किया बाय द 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है. सो लाइक हम अपनी टेरिटरी को सीड कर सकते हैं, मतलब थोड़ा एक्वायर कर सकते हो, थोड़ा दे भी सकते हैं. तो वी कैन एक्वायर एंड आल्सो सीड आवर टेरिटरी. तो हम सॉवरेनिटी अपने ऊपर है, हमारी मर्जी के ऊपर है, सो नो. एंड एट द सेम टाइम वी आर आल्सो द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन. So we are the member of United Nation, and if we are the member of United Nation, it means what? कि हम United Nation का member हैं, but क्या United Nation हमको जोर जबरदस्ती करेगा? नहीं. क्या हमको United Nation जोर जबरदस्ती करेगा? नहीं. So United Nation हमको कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता कि आप ये फैसला लीजिए, ये डिसीजन लीजिए. फॉर एग्जाम्पल आपको भी पता है जयशंकर इज हाउ एक्टिवली ही इज इन लाइक इंटरनेशनल रिलेशन. सो वहां पे वो कुछ भी अपना व्हेन ही गिव द स्टैंड्स, कि जब वो स्टैंड देते हैं तो उनमें कोई दिक्कत नहीं है. क्यों? क्योंकि वी आर द इंडिपेंडेंट कंट्री. कोई हमको पूछने वाला नहीं है कि आपने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल्सो कि सवरन क्या है. सवरन मीन्स इंडिपेंडेंट कंट्री. सो इंडिया इज द इंडिपेंडेंट कंट्री. इंडिया डज नॉट हैव, नोबडी हैव एनी राइट्स ऑन इंडिया. यही क्वेश्चन की उम्मीद थी. किसी ने लिखा है, ओके, इन्होंने लिखा है कि सर हमने सुना है कि इंडिया 99 इयर्स के लिए लीज पे मिली है, तो क्या बाद में ले लेंगे ब्रिटिशर्स? देखिए ये है आपका रील्स की दुनिया और ये है आपकी स्टडी की दुनिया. तो आपको क्या होगा, रील्स में तो कुछ भी चीजें चल रही है, वहां पे तो बस क्या है, कोई भी कैमरा लगा दिया, कुछ भी बातें कर रहा है, ट्रस्ट मी ब्रो, ट्रस्ट मी, बस यही चलता है. बट ऐसा कुछ नहीं है. वेरी सो वी हैव लाइक वी आर द सॉवरेन कंट्री. आजादी मिल गई, अब क्या 99, कुछ नहीं है ऐसा फालतू बातें है. और आप तो यार, यू पीपल आर यूपीएससी एस्पिरेंट, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, योर माइंडसेट लेवल शुड बी सच अ हाई लेवल. ये सब चीजों में आप उतना ध्यान मत दीजिए, ठीक है. चलिए, so I hope you got it. Yes, sovereign means what? It is India is an independent country. Yes, tell me. Yes, India is an independent country. Yes. क्या इंडिया कॉमनवेल्थ में है? Yes. कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया खेलता है? Yes. अगला कॉमनवेल्थ कहाँ है? हो गया. थोड़ा पढ़ाई करते रहो, ठीक है. So India, does India is a member of United Nation? Yes, tell me. Yes, very good. Does India is a member of United Nation? क्या कॉमनवेल्थ का मेंबर है इंडिया? हाँ, चलिए. Then second is socialist. See, before start going to the socialist topic, see, I'll tell you one thing. Like generally, what I believe. एक मेरी लाइन है, एक ही गलती मैं बार बार करता हूँ, एक ही गलती मैं बार बार करता हूँ, PYQ हूँ, PYQ से प्यार करता हूँ. क्या समझा? So जब भी आप एग्जाम को पढ़ रहे हो, लाइक यू हैव टॉपिक टेकिंग अ टॉपिक प्रीएम्बल, तो योर फोकस शुड बी कि यू आर टेकिंग अ टॉपिक. आपने प्रीएम्बल पढ़ा क्लास में. यस, यू हैव स्टडीड इन क्लास का नोट्स बना, थोड़ा सा रिवाइज किया, देन यू सॉल्व सच अ एमसीक्यू, सो मेनी एमसीक्यू. और फिर उस एमसीक्यू को आपको समझ में आएगा कि मैंने जो भी पढ़ाया उससे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं. तो वो आपकी क्या होगी? विजय होगी. आप उससे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो फिर वापस क्लास के नोट्स, और यू कैन सर्च लाइक जो मटेरियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पीपीटी के थ्रू यू कैन रीड. सो इट इज वाज आपको PYQ इज द किंग. लाइक आई यूजुअली से कि PYQ आपको पढ़ना ही पढ़ना है. लाइक टुडे आई विल बी टेकिंग सम टॉपिक ऑफ PYQ आल्सो. जैसे अब आप देखेंगे द माइंड ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है उनका माइंड, उनकी बुद्धि कहाँ झलकती है? प्रीएम्बल. वेरी गुड, सही है कि नहीं? प्रीएम्बल में झलकती है. तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का एस्पिरेशन, आइडियल, इंस्पिरेशन, माइंड, सब कुछ कहां रिफ्लेक्ट हो रहा है? प्रीएम्बल में. सो प्रीएम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. किसने बोला? प्लीज डू कमेंट मी. किसने बोला? किसने बोला? इनके पालकी वाला. चलिए, सी एक और चीज, व्हेन आई से कि PYQ इज द किंग, PYQ इज द किंग, इट मींस व्हाट?
पी वाई क्यू इज द किंग। एक ही गलती मैं बार बार करता हूँ, पी वाई क्यू हूँ, पी वाई क्यू से प्यार करता हूँ। तो आपको किससे प्यार करना है? पी वाई क्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और आपका फोकस कहाँ हो? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे। और उससे आपको समझना है कि हाउ द क्वेश्चंस आर गेटिंग फ्रेम। जस्ट अ सेकंड। सो चलिए, आप लोग भी पानी पीने लगे। बोल तो मैं रहा हूँ, थक मैं रहा हूँ, आई एम ट्रेनिंग माई एनर्जी। आप लोग को क्यों थकाना रही है? चलिए, सी PYQ is the king. I usually say कि you have to focus how the questions are getting framed. Like the question I am taking you is all the question are basically all question are PYQ. That is every question here it is a previous year question of UPSC Union Public Service Commission. So आपका फोकस कहाँ हो? PYQ। सी सिंपल सी बात है। अब ये कौन है? एक सांप आ गया, ठीक है। अब एक सांप आ गया आपके पास, अजगर कोई भी सांप आ गया। अब आपने क्या एक अटेम्प्ट लिया, दो अटेम्प्ट लिया, उसको मार रहे हो, लाठी से मार रहे हो कि आपकी जान चली जाए, मार रहे हो और आपने करीब 15-20 लाठियां मारी है, तब जाके वो सांप की डेथ हो गई। मे बी लाइक आपने डर के मारा, उसको किल करने की कोशिश की। बट अगर आपका छोटा और बड़ा भाई जब वो सांप अगर उसको कभी लाइफ में दिखा, आपने उसको पहले से बता के रखा है कि आप उसको हेड पे अटैक करो, तो मे बी 2 या 3 कोशिश में आप सांप की डेथ हो जाए, तो आप बच जाओगे। इट मीन्स व्हाट कि अगर हम लोग भी कह रहे हैं वी आर द सीनियर्स टू वी आर टीचिंग यू, सो आपका हम अगर आपको कह रहे हैं कि PYQ करना, तो आपका मतलब है कि PYQ करना ही है। क्यों? क्योंकि आपको खुद जो गलती आप दूसरों से सीखोगे वो हम सिखा रहे हैं कि आपको गलती नहीं करनी है। कहाँ पे गलती करनी है? कहीं गलती नहीं करनी, कहीं भी गलती नहीं करनी है, सीधा हमें 1 गो में चलना और हमें सीधा क्या लेना है? फाइनल सिलेक्शन। सो PYQ इज द वे जो आपको ये बताएगा कि हाउ द क्वेश्चन गेटिंग फ्रेम, कैसे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन बार बार आते हैं और वो टॉपिक कैसे बार बार आ रहा है, समझ रहा है। फॉर एग्जांपल 1983 का यूपीएससी का क्वेश्चन, और ये चीज तो मैं आपको चाहूंगा कि आप अटेम्प्ट करोगे। प्लीज डू अटेम्प्ट गाइस। इट इज ऑफन सेड द की ऑफ द माइंड ऑफ द मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लाइज कहाँ है? इजी। सर्विस इज सेइंग सर यही क्वेश्चन तो दोबारा आ गया है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन सी फॉर एग्जांपल पॉलिटी, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इवन ऐसे इन्वायरमेंट के कुछ टॉपिक हो गए, साइंस, जनरल साइंस के टॉपिक हो गए कि यूपीएससी के पास क्वेश्चन भी नहीं बचा है। हर साल वही क्वेश्चन पूछ रहा है, हर साल वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एज अ बिगिनर इट्स आवर ड्यूटी कि हम बहुत अच्छे से पढ़ें, ग्रैप्स करें टॉपिक को और हम समझें कि कैसे क्वेश्चन एक ही बार बार आ रहा है। तो एग्जाम में ऐसे पूछ रहा है which of the following like which part of the constitution is shows the aspiration of the country, which part of the constitution shows the ideal of the constitution, which part of the constitution shows inspiration कौन बता रहा है? so everything is what it is mentioned in your preamble, ठीक है। चलिए एक और चीज है, हाँ चलिए अब मुझे बताइए ये आपका गेट है, गेट, और ये आपका अपार्टमेंट है, घर। तो इज योर गेट इज योर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लाइक गेट इज योर पार्ट ऑफ अपार्टमेंट? हाँ, क्या उसका कोई इंपैक्ट होता? गेट आपने छोटा गेट कर दिया, बहुत बड़ा लंबा हाइटेड गेट कर दीजिए, क्या उस छोटा सा गेट रखिए, क्या उससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट आएगा आपको? नहीं। सो वैसे ही आप प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो प्रियम्बल क्या है? पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यस। बट क्या उसका कोई लीगल इंपैक्ट है किसी और पार्ट पे? क्या अगर मैंने बोला सर वहां पे सेकुलर लिखा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और हमको सेकुलरिज्म नहीं मिल रही है, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर है, आर्टिकल 25 to 28 वी हैव सेकुलरिज्म कॉन्सेप्ट। तो बट क्या हमको प्रियम्बल में भी सेकुलरिज्म है? यस, उसका नोशन तो मेंशन है, बट क्या कंपल्सरी, क्या उसका कोई लीगल इम्पैक्ट है कि प्रियम्बल में लिखा और आपने मुझे नहीं दिया? नहीं। So it is like this is UPSC 2020 questions and you are able to see one thing that I have already told you कि आपको हर साल ना एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आता ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको see this question asked in 2020, 2018, 2017, 2017. So you have seen 4 question from 2017, 2020, 2021. You are saying आपको प्रियम्बल से क्वेश्चन दिख रहा है यूपीएससी में? आइए देखिए 2021 क्वेश्चन दिख रहा है, यस। 2019 क्वेश्चन दिख रहा है, 2021 क्वेश्चन दिख रहा है, 2017 क्वेश्चन दिख रहा है। सो दिख रहा है कि नहीं? सो आपने एक चीज देखा, वेदर फ्रॉम 2017 और 2020
1। आपको लगभग यूपीएससी में क्वेश्चन दिख ही रहे हैं किसके, प्रियम्बल के। दैट इज द टॉपिक इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। ठीक है, सो गेट इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या गेट इज अ पार्ट ऑफ, वेरी गुड, गेट इज पार्ट ऑफ योर अपार्टमेंट, है कि नहीं गेट उसका पार्ट है। So even preamble is a part of constitution, but it does not have any legal effect on independently of other parts. किसी और पार्ट में कोई इम्पैक्ट उसका नहीं है, कोई और दूसरे पार्ट में उसका इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं है। यस, आर यू विथ मी गाइस? यस यस यस, ठीक है, चलिए आइए। सो अब इवन आपको थोड़ा टेक्निकल टर्म में लेकर चलो तो आप, मैं कह सकता हूँ सी, एक बेरूबारी केस हुआ था, और एक केशवानंद भारती केस हुआ। ठीक है, ये आपका 1973 और ये 1960 के आसपास है, ठीक है। सो बेरूबारी केस में क्या हुआ कि बेरूबारी मतलब बेरूबारी के इंसान है, उनके खिलाफ मतलब एक केस हुआ इन द सुप्रीम कोर्ट की प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है कि नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इन लाइक यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बेरूबारी केस, सुप्रीम कोर्ट सेड द प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो प्रियम्बल जो है पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। बट फिर कुछ सालों के बाद जब केशवानंद भारती केस है, बहुत फेमस है, उसमें लाइक बहुत सारे जजमेंट चेंज हुए, बहुत सारे लाइक इट इज दी लाइक हमसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, वो आपका एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। बेसिक डॉक्ट्रिन की थ्योरी यहाँ से आई है, तो विल सी बेसिक डॉक्ट्रिन क्या होता है, विल सी इन द अनदर क्लासेस की बेसिक डॉक्ट्रिन क्या है, ठीक है। तो बट केशवानंद भारती जो है, केशवानंद एक व्यक्ति थे, उनका जमीन का लैंड राइट्स इश्यू चल रहा था। सो केशवानंद भारती जो केस हुआ 1973 में, इस केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला यस प्रियम्बल, सुप्रीम कोर्ट ने बोला यस प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल किसका पार्ट है? कॉन्स्टिट्यूशन का। यस, so preamble is the part of constitution by the Keshwanand Bharati, and it also said it does not have any legal effect, no legal effect independently of any other parts. किसी दूसरे parts में it does not have any effect, कोई भी इफेक्ट उसका नहीं होगा दूसरे पार्ट्स में, कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। बट वो एस्पिरेशन है, आइडियल है, समरी है, उसकी झलक से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज थी। सो आई थिंक वी हैव आल्सो सॉल्व कपल ऑफ एमसीक्यूज आल्सो, ठीक है। विल गो टू टॉपिक, प्रीवियस टॉपिक अहेड, ठीक है। सो आई थिंक यू हैव आल्सो अंडरस्टूड कि आपको का कोशिश क्या है। आपकी कोशिश ये रहेगी कि आप क्लास में पढ़ो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, पीवाईक्यू इज द किंग, स्टैटिक इज द क्वीन। क्या समझा? समझा ये कि पीवाईक्यू जो वो किंग है, स्टैटिक क्या है? क्वीन है। स्टैटिक मीन्स व्हाट? फॉर एग्जांपल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दैट इज द गाइडलाइन टू यू। आपको पता है कि वो गाइडलाइन है, आपको वो कैसे रास्ता निकलना है, रास्ता ही रास्ता को दिखाता है, कैसे टॉपिक कवर करना है, क्या टॉपिक पे फोकस करना है। वो फोकस आपका किस में रहेगा? किसमें रहेगा आपका टॉपिक? फोकस रहेगा पीवाईक्यू। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम आपको भेजते, मतलब लाइक जैसे टॉपिक खत्म होगा उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे कराएंगे। फिर आपको हम बोलेंगे कि आप अपना जो पीपीटी शेयर करेंगे, नोट जो आपने लिखा है, तो आप कोशिश कीजिए कि यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन एमसीक्यू, और सो दैट आपकी प्रिपरेशन की चेन बहुत स्मूथ हो, ठीक है। एंड द वन थिंग, द ओनली थिंग इम्पोर्टेंट इन द एग्जामिनेशन इज द डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। सो वही यहाँ पे कछुआ नहीं जीतेगा, कछुआ ही जीतेगा, यहाँ कछुआ ही जीतेगा। टॉर्टोइज विल विन। रैबिट जैसा अगर चलोगे तो आप 10 दिन 20 दिन लगातार पढ़ सकते हो, 18 घंटा 20 घंटा, और फिर उसके बाद आप बिल्कुल ही पढ़ाई छोड़ दोगे। तो आपको क्या बनना है? टॉर्टोइज। यस, कोई लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि सर आई एम टॉर्टोइज। अरे हाँ, मुझे पता है आप टॉर्टोइज ही हो। चलिए, सो वी हैव मूव अहेड टू सोशलिज्म या सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। सो वी हैव अंडरस्टूड कि सॉवरेन क्या होता है। आर यू विथ मी गाइस? यस। देन वी हैव टू स्टडी एज ऑफ नाउ कि सोशलिस्ट क्या होता है, ठीक है। तो सोशलिस्ट इज व्हाट? तो सोशलिज्म और सोशलिस्ट इज व्हाट कि फॉर एग्जांपल एक चीज होती है कैपिटलिस्ट, एक चीज होती है सोशलिज्म, और एक कम्युनलिज्म भी होता है, अलग ही पार्ट है वो, ठीक है। सो कैपिटलिस्ट मतलब क्या? मेरा मकसद क्या है? पैसा कमाना। मेरा मकसद है अंबानी बनना।
मेरा नहीं है, ठीक है, आपका भी नहीं होना चाहिए, हमें सर्व करना है, वी हैव टू सर्व अ कंट्री, यस, देयर शुड बी नो मोटिवेशन ऑफ मनी, वो तो सेकेंडरी है। चलिए इधर, सो आर अप्रोच लाइक आपका मकसद किसका, अंबानी का मकसद है पैसा कमाना, अडानी का मकसद है पैसा कमाना, बिरला का मकसद है पैसा कमाना, ठीक है, सो लाइक किसका भी मकसद है, तो उनका क्या मकसद है, पैसा कमाना। तो वैसे यूएसए हमेशा किस टेंडेंसी पे चलता है, यूएसए इज ऑलवेज इन द टेंडेंसी ऑफ कैपिटलिस्ट अप्रोच, कि हमें पैसा पैसा पैसा, हाई पैसा हाई पैसा। तो यूएसए इज अ कंट्री जहां पे जहां पे जहां पे क्या है, यूएसए इज अ कंट्री जहां पे प्राइवेट कंपनियां सरकार के कंपनियों से भी ज्यादा है। मतलब शायद यूएसए के लाइक कैपिटलिस्ट पीपल ऑफ यूएसए टेस्ला के मालिक हो गए, ठीक है, और जैसे लाइक फेसबुक के ओनर हो गए, जितने भी लोग हैं सब बड़े बड़े लोग, अमीर लोग कहाँ हैं, यूएसए के। द रीजन इज द यूएसए ऑलवेज प्रमोट इंडिविजुअलिटी मनी पर्पस, लाइक वहां पे कैपिटलिस्ट अप्रोच है कि लोगों के माइंड में हमेशा से कि उनको कैपिटलिज्म पे अप्रोच करना, उनको पैसे की तरफ भागना। और दूसरा है हमारा रशिया। रशिया क्या कहता है, रशिया कहता है पैसा कमा के क्या करोगे जब तक अपनी जनता ना खुश हो। रशिया कहता है पैसा कमा के क्या ही कर लोगे जब तक अपनी जनता ही ना खुश हो। तो रशिया इज ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म, कि हमें क्या लाना है, सोशलिज्म अप्रोच करना। सोशलिस्ट अप्रोच मींस मतलब जितनी भी बड़ी कंपनियां होगी, जितने भी रेलवे हाईवे सब कुछ बनेगा वो हम बनाएंगे, गवर्नमेंट। So government would take the responsibility of socialism approach, government would take the responsibility of socialist ideology, कि उनको क्या करना है, कि उनको सबके लिए डेवलपमेंट करना है, प्रोडक्शन वो गवर्नमेंट करेगा। तो यहाँ पे कोई इंडिविजुअल और प्राइवेट कंपनी कैन नॉट मूव, वो ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती है किनसे, गवर्नमेंट से। बट यहाँ पे प्राइवेट कंपनियां जो होती है वो बड़ी हो चुकी है। लाइक आपने अभी देखा रहेगा इलेक्शंस ऑफ लाइक डोनाल्ड ट्रंप, टेस्ला के मालिक हमेशा उनके साथ ही घूमते थे, उन्होंने पूरा उस समय हुआ उनका हेल्प से, मदद से। तो बड़ी कंपनियां जब लाइक प्राइवेट कंपनी आर इवन मोर बिगर देन द गवर्नमेंट इन कैपिटलिस्ट माइंडसेट। और सोशलिस्ट में क्या होता है, प्राइवेट कंपनी कभी ऊपर ही नहीं उठ पाएगी और हमेशा सब काम कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। तो अगर हर चीज गवर्नमेंट करेगी तो दिक्कत हो जाएगी, सब गवर्नमेंट पे डिपेंड रहेंगे, प्राइवेट कंपनी कभी ऊपर नहीं बैठ पाएगी। तो इंडिया ने बोला कि ना हम कैपिटलिस्ट अप्रोच ले जाएंगे, हालांकि सोशलिज्म अप्रोच जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि सोशलिज्म अप्रोच हो, बट इवन लाइक विद the people of other Congress committees, वो Congress members, they have founded a more lucid way, that is democratic socialism. सी हमने क्या किया, वी हैव बोरो द कॉन्स्टिट्यूशन, उसका कॉन्स्टिट्यूशन का नोशन हमने बहुत अलग अलग कंट्री से हमने कुछ ना कुछ बोरो कर लिया, और हमेशा क्या क्या उनमें ये चलता है, इनमें ये चलता है, हमने क्या क्या क्लब कर लिया कि हमारे देश के लिए क्या सूटेबल है। अगर हमारे देश का कैपिटलिज्म अप्रोच हो जाएगा तो आपने शिवाजी द बॉस मूवी देखी होगा, भाई एक ही आदमी के पास अमीर और अमीर बढ़ता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। सोशलिज्म में होगा कि गरीब थोड़ा सा उठ रहा है लेकिन अमीर कोई बन ही नहीं पाएगा, और अमीर इफ नोबडी इज लाइक कोई रिच नहीं है तो गवर्नमेंट को फंड कहां से आएगा, सोशलिज्म अप्रोच, ठीक है। तो हमने क्या वापस व्हाट वी हैव टेकन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इन सिंपल वर्ड्स, लाइक इन द वर्ड्स ऑफ शशि सर, दैट इज व्हाट mixed economy, that is what mixed economy, ठीक है। So democratic socialism is what, democratic socialism, India has adopted socialism approach, socialist approach, which is what democratic socialism। मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अंबानी भी होंगे, लाइक यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी अमीर बनेंगे और गवर्नमेंट भी बनेगी, दोनों मिलके क्या चलाएंगे, देश। तो इंडिया का मतलब यहाँ पे जो गुड्स है, रिसोर्सेस है, इट इज कॉमन बेनिफिटेड टू ऑल द पीपल। मतलब प्राइवेट भी आपके पास होगा, यस, आपकी इच्छा है तो आप प्राइवेट कार लेके जाइए, लेकिन गवर्नमेंट ने आपके लिए बस की इंतजाम की है। आपकी इच्छा है आप प्राइवेट जेट से जाइए, लेकिन गवर्नमेंट ने लाइक प्राइवेट जेट से या प्राइवेट आप अपने एरोप्लेन टिकट से लेके जाइए, लेकिन गवर्नमेंट ने आपके लिए ट्रेन का इंतजाम किया, ठीक है। सो गवर्नमेंट भी आपको सुविधा दे रही है कि बस से आइए, नहीं है आपके पास कार, बस से जाओ, ये तो मैं दे रहा हूं, मैं नहीं, गवर्नमेंट, ठीक है। ट्रेन नहीं है आपके पास सुविधा तो यू गो टू विद द ट्रेन, हम ट्रेन की सुविधा दे रहे हैं, ठीक है। इवन इफ यू रिमेंबर लाइक बैंक्स है, वी हैव सेवरल बैंक्स, यस और नो, एसबीआई, इसका नाम पहले था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इनका नाम 1955 में इनको भी चेंज किया गया, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो टेल मी, क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही एक ही बैंक हमारे देश में सबसे बड़ी गवर्नमेंट बैंक है? हाँ, लेकिन क्या एक ही बैंक हमारे देश में? नहीं,
SBI है, HDFC है, ICICI बैंक है, कितने we have several banks in the country, yes or no? So even we have a private bank. आपके पास ज्यादा पैसा है प्राइवेट बैंक में रखिए, कम पैसा है गवर्नमेंट बैंक में रखिए। सर्विस ने लिखा पैसा ही नहीं है तो मत रखिए, है नहीं तो काम बैंक खुलवाना, अकाउंट क्यों खुलवाना, पढ़ाई करो तब पैसा आएगा। सिलेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, सिलेक्शन, ठीक है। तो अपना लक्ष्य एक ही चीज पे हो कि हमें कहाँ फोकस करना है, एग्जाम पे, ठीक है। So we have, as a country, we have adopted a democratic socialism, which is a mixed economic culture. और ये चीज हमने इसलिए अडॉप्ट की है कि फॉर एग्जाम्पल जो सोशलिज्म है, सोशलिज्म रशिया का है, इवन द सोशलिज्म लाइक कैपिटलिस्ट अप्रोच ऑफ यूएसए, ये दोनों ही अप्रोच हमको बहुत डिफिकल्ट लगता है टू अडॉप्ट इन आवर कंट्री, क्योंकि हमारे कंट्री का स्टेटस उस समय ऐसा था कि गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए गरीब लोगों को, लाइक सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल, यस। और कैपिटलिस्ट अप्रोच से चले जाएंगे तो फिर वो हो गया कि बहुत ज्यादा अमीरी हो गई और हम नीचे, हमारा जो सोशल, जो गांधी जी का आइडियोलॉजी था वो डिस्टर्ब हो जाता। तो वी हैव अडॉप्टेड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म व्हिच इज आल्सो नोन एज मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ पे अंबानी है, गवर्नमेंट की भी, लाइक यहाँ पे अंबानी भी है, ठीक है, और यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट भी कुछ आपको सुविधा दे रही है। यू हैव अ लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, यस, कितना सारा लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, आपका एक्सिस बैंक का लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, policybazaar.com, सब वी हैव सेवरल कंपनीज जिनकी क्या है लाइफ इंश्योरेंस स्कीम। तो वो प्राइवेट कंपनी आपको लाइफ इंश्योरेंस दे रही है, यस, लेकिन गवर्नमेंट भी दे रही है, कौन से, LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो आपको प्राइवेट भी वही सुविधा देगी, गवर्नमेंट भी वही सुविधा देगी, बस ये कि प्राइवेट हॉस्पिटल है क्या। अच्छा सोचिए, अगर हम सोशलिज्म अप्रोच से जाते तो शायद हमारे देश में प्राइवेट हॉस्पिटल होता ही नहीं, तो जिनके पास पैसा है कम से कम उनको तो सुविधा मिले, यस और नो। बट कैपिटलिस्ट अप्रोच से जाएंगे तो जिनके पास है सिर्फ उन्हीं को सुविधा मिलेगी, बाकी लोग के पास पैसा नहीं तो सुविधा कहाँ लोगे। आर यू गेटिंग? सो वी हैव अडॉप्टेड द बोथ आइडियोलॉजी। सोशलिज्म का हमने क्या किया, मिक्स इकोनॉमी अप्रोच किया कि पैसा जिसके पास है वो पैसा देके सर्विस ले, जिसके पास पैसा है वो कार खरीद ले, जिसके पास पैसा नहीं वो बस से जाए, ठीक है। तो सबको इक्वल लेवल पे लाना है, दैट इज द जो देश का सपना है। आर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, फ्रीडम स्ट्रगलर, जो उनकी इच्छाएं थी, दे वांटेड कि देश हमारा हो जहाँ पे सब बराबर आ जाए, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट गाइस, ठीक है। सो सोशलिज्म अप्रोच, इवन वन थिंग दैट सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ठीक है, these three word has been later added in our constitution, okay, these three later has been later added in our constitution। तो अभी हम देखेंगे, पहले हम सेकुलर देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, आपको देंगे, होमवर्क देंगे। सी इवन इन माय क्लासेस आई विल मेक श्योर आपको डेली एमसीक्यू। सी इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एक ही चीज आपको सिलेक्शन दिला सकती है, वो है सॉल्विंग सो मेनी एमसीक्यू एवरी डे। So I'll make sure for after completing the topic, I'll provide you more than like 50 questions on every topic, so that it will be easy for you people कि आप क्या करिए, आप उसको अच्छे से आप उसको लिख सके, या MCQ सॉल्व करेंगे तो आपका और माइंडसेट क्लियर होगा। So we'll see secular, क्या देखेंगे हम, secular we see secular। हाँ, मेरी राइटिंग अच्छी है, थैंक यू, बट अभी कैसा है कि थोड़ा सा लाइक कंफर्टेबिलिटी लेवल से धीरे धीरे विल मेक मोर ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। मेरी राइटिंग मुझे अच्छी है, मुझे पता है, बस मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि मैं भी थोड़ा खराब राइटिंग में लिख सकता हूँ। आइए देखिए, सी सेक्युलर और सेक्युलरिज्म मीन व्हाट, लाइक we as the country, like the government, the constitution maker has told us कि we won't support any religion, हम किसी रिलीजन को ना ही सपोर्ट करेंगे ना ही उसको डेरोगेट करेंगे। मतलब वी विल मेक श्योर कि हम लोग जो कोई भी रिलीजन है हम उसको ना, मतलब विल प्रमोट, हम उसको किसी भी रिलीजन को हम क्या करेंगे, उसको प्रमोट, ना ही उसको ज्यादा प्रमोट करेंगे ना ही उसको हम ज्यादा डेरोगेट करेंगे। तो सेकुलरिज्म मीन्स व्हाट, सी इवन इफ यू मतलब द पीपल फ्रॉम अदर बैकग्राउंड, एक होता है धर्म निरपेक्ष, ठीक है,
सो सेक्युलरिज्म, और अगर आप हिंदी में प्रियम्बल को देखोगे तो सेक्युलरिज्म मीन्स धर्मनिरपेक्ष नहीं होता है कि आप हर धर्म, सब धर्म को मानना है, सब धर्म को आपको मानना है कि सब धर्म को नहीं, आप अपने चॉइस से विथ योर फ्रीडम यू कैन अडॉप्ट फॉर एनी रिलीजन, बट लाइक इट्स अ पंथ निरपेक्ष। क्या है? पंथ निरपेक्ष। ठीक है, सो पंथ निरपेक्ष मीन्स व्हाट? पंथ मीन्स मतलब इवन द स्टेट वोंट सपोर्ट एनी सेक्ट आल्सो। स्टेट किसको नहीं सपोर्ट करेगा? सेक्ट को। सो इवन द स्टेट वोंट सपोर्ट एनी सेक्ट आल्सो, इवन द स्टेट वोंट सपोर्ट एनी religion also. So it is the positive form of secularism where the state would promote, state क्या करेगा? प्रमोट करेगा थोड़ा सा, मतलब आपको स्टेट क्या करेगा? ना ही प्रमोट करेगा, नहीं आपको डेरोगेट कर रहा है कि मतलब आपको स्टेट है, तो इट इज द पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म। ठीक है, मतलब यू हैव अ चॉइस, यू हैव अ फ्रीडम ऑफ चॉइस विद फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, आपके अंदर से जो आवाज आएगा वो आप रिलीजन फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो सेक्युलरिज्म मीन्स मतलब यू हैव अ चॉइस, यू हैव अ फ्रीडम, मतलब आप हिंदू से मुस्लिम जा सकते हो, मुस्लिम से क्रिश्चियन जा सकते हो, क्रिश्चियन से मुस्लिम जा सकते हो, मुस्लिम, तो यू हैव अ चॉइस, यू कैन बी जैन। सो बाय बर्थ इट इज नॉट, जो आपका रिलीजन आप उसको भी छोड़ के आप दूसरे रिलीजन में जा सकते हो। सो लाइक यू हैव अ चॉइस ऑफ फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ योर ओन चॉइस कि आप कौन सा सेक्युलरिज्म अडॉप्ट कर रहे हो। पर इवन एट द सेम टाइम गवर्नमेंट वुड नॉट सपोर्ट, लाइक गवर्नमेंट किसी को, इट इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म कि जहाँ पे गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करे। हज यात्रा की बात यह है कि गवर्नमेंट हज यात्रा पे भेजती है, बट क्या अभी भी शायद बंद कर दिया है अभी तो, बट क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लोगों के लिए अपलिफ्टमेंट, लाइक माइनॉरिटीज के लिए या खुशी से कुछ कर सकती है, बट वो बाइंडिंग नहीं है उसके ऊपर कि करना ही होगा। ठीक है, चलिए, तो सेक्युलरिज्म में तो वी आर द सेक्युलर कंट्री, हम हर धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम सब धर्म अपना सकते हैं, हम हर धर्म को मानने वाले लोग हैं। ठीक है, सो अगेन वी आर लेफ्ट विथ टू थिंग, लाइक सी डेमोक्रेटिक कंट्री। सो डेमोक्रेटिक मीन्स व्हाट? सो आफ्टर डेमोक्रेटिक we'll have we have a republic also. ठीक है, see democratic country. So India is a democratic country. Yes. क्यों? क्योंकि हम इलेक्शन लड़ते भी हैं, जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, और हम दूसरा आदमी उसको वोट करता है। तो यहाँ पे जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है। कौन होता है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। और लाइक डेमोक्रेसी मीन्स व्हाट? इवन द डेमोक्रेसी का जो फॉर्म होता है, बहुत सारा फॉर्म है, लाइक वी हैव अ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, वी हैव अ प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी या प्रेसिडेंशियल। सो एक है प्रेसिडेंशियल और एक है पार्टिसिपेटरी होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, देयर आर सेवरल रिप्रेजेंट, बट जो हमें इंडिया के कंटेक्स्ट में देखना है वो है पार्लियामेंट्री। ठीक है, अरे विथ में गाइस, ये सोना नहीं है, सोइए मत, दोपहर का समय खाना खा के आप लोग सो जाते हैं। सी प्रेसिडेंशियल एंड देन वी हैव अगेन सेकंड वन इज व्हाट? इज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये आपका जनरली यूएसए में चल रहा है। ठीक है, यहाँ क्या है? यहाँ पे इंडिया में चलेगा। ठीक है, और कहाँ है आपके? कनाडा में भी चल रहा है, यूके में चल रहा है। ठीक है, सो वी हैव इंडिया, कनाडा एंड यूके, बहुत सारी कंट्रीज में चल रही है। ठीक है, प्रेसिडेंशियल यूएसए में वगैरह में चल रहा है। अब देखिए, सो डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी मींस व्हाट? इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। यस, इट मींस व्हाट? जो हम लोग क्या होते हैं, हम लोग वोट देते हैं, वी हैव द राइट्स ऑफ गिविंग वोट्स, हमारे पास वोटिंग का अधिकार है। अगेन आई एम आस्किंग अगेन कि आपको वोटिंग राइट कौन सी एज से दिया है? 18 years. So you have got a voting right from the age of 18 years and you have got like voting right कब से दिया? 18 years से दिया। कब दिया है? By the 61st Constitution में 1989। रट लो। See, so democratic country means what? We can elect our representative। हम अपने लोगों को, जो हमारे लोगों को हम वोट देंगे, वो जीत के जाके आपको रिप्रेजेंट करेंगे पार्लियामेंट में, आपकी बातें वहां रखेंगे। So we have a two form of like generally, so इंडिया में क्या चलता है? पार्लियामेंट्री फॉर्म चलता है। सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का जनरली अगर कुछ बातें हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। क्या होंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो मिनिस्टर्स आपको पता है कि बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, जो भी उनको मिनिस्ट्री का पोस्ट दिया जाता है, उसमें क्या होता है? काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, दे आर वेरी क्लोज टू द, लाइक
प्राइम मिनिस्टर। तो वो लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, वो लोग क्या चलाते हैं, मिल के प्राइम मिनिस्टर के साथ देश चलाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट होगा और दूसरा क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर। सो प्रेसिडेंट भी होंगे और प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, मतलब इट्स अ ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव मींस व्हाट, सी आपको पता होगा तो लाइक वी हैव अ सेवरल पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, जैसे एग्जीक्यूटिव होता है, जुडिशरी होती है, ठीक है, पार्लियामेंट है दैट इज लेजिस्लेचर। सो ये लोग जो एग्जीक्यूटिव हैं, तो ये वी हैव अ ड्यूअल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाते हैं। एंड इवन जो ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना रहे हैं, यहाँ के लोग, ये लोग क्या मतलब, यही लोग जो गवर्नमेंट बना रहे हैं, इन्हीं लोग का यही जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट can be only member of parliament can be only member of parliament can be only what, they can be the only minister। आपको या तो राज्यसभा से या तो लोकसभा से मेंबर बनना ही पड़ेगा, आपको मिनिस्टर बनना है, बट प्रेसिडेंट फॉर्म में नहीं होता है। यहाँ पे एक्सपर्टीज आते हैं, एक्सपर्ट आते हैं। यस, फॉर एग्जांपल मैं नासा में हूँ, बहुत बड़ा काम किया, मैंने साइंटिस्ट बन गया। अब अगर मुझे मेरी गवर्नमेंट चाहती है कि नासा का जो चेयरमैन है या जो वहाँ के हाईएस्ट अथॉरिटीज है, सो उनको मैं चाहता हूँ कि मैं अपने स्टेट, लाइक जो जैसे इसरो है, तो इसरो का चेयरमैन है, तो मैं उनको चाहता हूँ कि उनको अपना लाइक स्पेस मिनिस्ट्री का जो मैं उनको हेड बना दूँ, लाइक चेयरमैन बना दूँ, या स्पेस मिनिस्ट्री उनको कंट्रोल में दे दूँ। तो यहाँ पे हम किसी भी एक्सपर्ट को या किसी भी लोगों को हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं मिनिस्टर। बट यहाँ पे किसी को भी व्यक्ति को नहीं बना सकते हैं। जयशंकर वो वाज द फॉरेन सेक्रेटरी, यस, उनको फॉरेन मिनिस्टर बनाया, बट कैसे, राज्यसभा से, यस, कैसे बनाया, राज्यसभा से, ठीक है। even like RP, like anybody who get like you, whether you have to be like you are representing the parliament, अगर आप पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करोगे तभी आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन सकते हो। बहुत सारी चीजें रहती है, ड्यूअल एग्जीक्यूटिव है, ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। लाइक लाल बहादुर की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री ड्यूरिंग द लाइक ही वाज द रेल मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दैट टाइम, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिजाइन कर दिया फ्रॉम रेल मिनिस्ट्री। क्यों? क्योंकि उसमें ट्रेन पलट गई थी। सो द पीपल, लाइक इफ यू एबल टू अंडरस्टैंड कि जब भी हमारे देश में रेल घटना होती है तो वी सेड की रेल मंत्री रिजाइन करो, रेल मंत्री रिजाइन करो। फॉर एग्जांपल डिफेंस का इशू कुछ होता है, सी सॉरी सी फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब भी हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑलवेज टेक द रिस्पांसिबिलिटी। फॉर एग्जांपल कभी घटना हो जाती है, रेल घटना हो गई या डिफेंस का कुछ डील में कुछ दिक्कत होती है, तो ऑलवेज पीपल टेक द रिस्पांसिबिलिटी कि आप रिजाइन करिए। बट यहाँ पे नोबडी कैन आस्क रिजाइन करिए ना करिए। यहाँ पे सिंगल एग्जीक्यूटिव, मतलब यहाँ पे ड्यूअल गवर्नमेंट नहीं होता है, यहाँ पे सिंगल गवर्नमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या, सिंगल एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे जो भी हेड है कौन है, प्रेसिडेंट। कौन हेड है, प्रेसिडेंट, ठीक है। So we'll take the more like it's we'll go to as we ahead go to the number of classes ahead. So we'll also write the parliamentary versus presidential form of government. उसका difference between भी लिखेंगे, उसका merit, demerit. But it was a quite short introduction of like presidential and parliament form of government. We'll later in the other classes we'll make sure कि आपको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इन दोनों का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और लाइक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम क्या करेंगे, दोनों को डिस्टिंग्विश करेंगे, उसको मेरिट्स लिखेंगे, डीमेरिट्स लिखेंगे, फिर उसके हिसाब से करेंगे, ठीक है। सो आई थिंक यू हैव गॉट इट, यस। किसी को कोई पूछना? हाँ, मतलब क्या है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे एग्जांपल इंडिया पूछ सकता है, कनाडा पूछ सकता है, वो एमसीक्यू वगैरह में कई बार आ जाता है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। So we'll take the like next, that is republic. So India is a republic country, ठीक है। इंडिया क्या है, रिपब्लिक कंट्री। कैन एनीबडी टेल मी? हाँ बताइए, क्या यूनाइटेड किंगडम, लाइक यूनाइटेड किंगडम इज अ रिपब्लिक कंट्री? नहीं, रिपब्लिक नहीं है।
क्यों? देखिए, रिपब्लिक का मतलब होता है दो चीज, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो इलेक्टिव है, वो इलेक्टेड है या नॉट इलेक्टेड है, मोनार्कियल है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट क्या है, वो इलेक्टेड है या नॉट इलेक्टेड है, नॉट इलेक्टेड, ठीक है। सी, और दूसरा क्या होता है, जो ऑफिसेस होती है, गवर्नमेंट ऑफिसेस इज ओपन टू एवरीबडी और नॉट, or no, ठीक है। See, India is a republic country, yes, but UK is not a republic country, yes, because जो अपना head of the government, who is the head of the government, हमारे गवर्नमेंट का हेड कौन है? मोदी जी नहीं है, कौन है? द्रौपदी मुर्मू, यानी प्रेसिडेंट। मोदी जी नहीं है। सी, तो who is the head of the government? अपना head of the government कौन है? प्रेसिडेंट। So tell me, our president is an elective body or a monarchical? राजा का बेटा राजा बन रहा है कोई यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे अपने प्रेसिडेंट साहब जो कौन है वो लाइक द्रौपदी मुर्मू। सो शी बिकम द लाइक शी इज द फर्स्ट ट्राइबल president of India. So very like it is a golden opportunity to her also, and it is a like respect and dignity of the people of the tribal community कि उनके community से एक व्यक्ति पहली बार भारत का president बना। So like president of who become the president? President कौन है? Who is the president? Head of the government कौन है? President. So he is the elected। और दूसरा क्या है? मोनार्कियल। आपको पता है प्राइम मिनिस्टर, यूके का प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, लेकिन वहां का राजा हमेशा वही रहेगा, चार्ल्स साहब ही रहेंगे, उनकी फैमिली हमेशा चलती रहेगी, यस और नो? सो ये क्या होता है, अगर आपका इलेक्टेड है तो रिपब्लिक होगा, और नॉट इलेक्टेड है तो मतलब वो तो मोनार्कियल ही चल रहा है, जैसे आपके पहले यहाँ पे चलते थे, जैसे भूटान हो गया फॉर एग्जाम्पल मोनार्कियल, ठीक। और अपना लाइक इवन योर नॉर्थ कोरिया, जहाँ पे भी राजा का किंगडम चल रहा है, राजा है वहां पे एक मतलब हेड इज द कौन है? मोनार्कियल है, वो लेगेसी चलती आएगी, ठीक है। देन गवर्नमेंट ऑफिसेस, लाइक गवर्नमेंट ऑफिसेस इज ओपन टू एवरीबॉडी, यस। सो फॉर एग्जांपल, कैन यू बिकम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हो। कैसे बनोगे यार आप लोग? एज कहाँ हुई? एज भी तो लगेगा कि नहीं? सो टू बिकम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यू नीड अ मिनिमम एज, दैट इज 30 ईयर। आपको मेंबर लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए 30 ईयर तो चाहिए, अभी 30 ईयर तो हो ही नहीं आप। हाँ, कोई है। सो कैन यू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ कैन यू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ स्टेट असेंबली? हाँ, लड़ने को तो हम सब लड़ सकते हैं, बट जिसकी एज है फॉर द मतलब स्टेट असेंबली का इलेक्शन के लिए कितना चाहिए? 25 ईयर, ओके। और बाकी कैन यू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ पंचायत? हाँ, 21 ईयर, वेरी गुड। तो जिसकी लाइक म्युनिसिपैलिटी की एज के लिए 21, तो यू कैन कंटेस्ट द इलेक्शन अगर आपका एज है। सो गवर्नमेंट ऑफिसेज इज ओपन टू एवरीबडी, एंड इवन लाइक आपका फॉर एग्जांपल आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट एग्जाम, तो आप सबके लिए ओपन है। यस, किसी ने ऐसा बोला क्या कि आप ये यू आर फ्रॉम दिस कैटेगरी यू वोंट एबल टू गेट लाइक आप यहाँ पे जॉब नहीं ले सकते? नहीं, सब ले सकते हैं। तो इट इज ओपन टू एवरीबॉडी, गवर्नमेंट ऑफिसर्स आर ओपन टू एवरीबॉडी, एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कि आपको है। यस, हाउएवर वहां पे रिजर्वेशन इज आल्सो डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। सो रिपब्लिक कंट्री मींस द कंट्री द हेड ऑफ द गवर्नमेंट वुड बी इलेक्टेड बॉडी एंड द गवर्नमेंट ऑफिसर्स वुड बी गिवन टू एवरीबॉडी, मतलब जो सेलेक्ट होगा उसको मिलेगा। आप बोलोगे सर मुझे नहीं मिला, अरे एग्जाम निकालो, एग्जाम देने मिल रहा है ना, वही बात है, ठीक है। So we'll take like see आपको एक और चीज I'll make sure. So these were the some objective of the God. See, so like we the people of India is the source of authority we have given. SSDR is this like sovereign, socialist, secular, democratic and republic is the nature of the constitution. ठीक है, like जो नेचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, कैसा नेचर है, कैसा ऑब्जेक्टिव है। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव एंड अदर आर लाइक जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इट इज गिवन बाय हुम? जस्टिस तो नहीं है, बट लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी आपका कहाँ से? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से है। कहाँ से आया? फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। So we'll study these things in another classes, okay? So we'll study justice, equality, liberty, like fraternity we'll study in other classes, but will like constitution amendment होता है क्या प्रियम्बल का?
क्या प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय अमेंड? बदलाव। क्या हम इसको बदल सकते हैं? हाँ। हमने कहाँ बदला है? हमने सोशलिस्ट बदला है, हमने सेकुलर बदला है, और हमने इंटीग्रिटी को ऐड किया है। ठीक है, तो वी हैव सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी हमने ऐड किया है बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, आपको एक ट्रिक दे देता हूं, आपको समझने के लिए आसान होगा। 4-2 कितना होता है? 6, तो 1976। एक और है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, बहुत फेमस होता है, तो कब है? 1978। 448 1978। इजी? यस। सो लाइक sovereign, sorry, socialist, secular और integrity, these three word has been later added by the constitution में 42nd constitution 1976 से ऐड हुआ। ओके, ठीक है। सी, और आपको एक और चीज है, तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, क्या हम प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं? यस, प्लीज कमेंट कीजिए, क्या हम प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं? यस। क्या हम प्रियम्बल को अमेंड किया हमने? हाँ। कितनी बार? एक। कितनी जगहों पे? 3 जगहों पे। So we have amended preamble one time, but at 3 places. By which constitution amendment? 42nd constitution 1976. ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट कब किया है? अपने कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट कब किया है? 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949, अभी 5 दिन पहले, 6 दिन पहले गया। तो 26 नवंबर 1949 इज व्हाट? इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस। सो इवन संविधान दिवस क्या हम स्टार्टिंग से मनाते आ रहे हैं जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया? नहीं, जब से लाइक इलेक्शंस, ये लाइक व्हेन द प्राइम मिनिस्टर मोदी, पीएम मोदी हैज कम, उनके बाद ये अभी 2021-22 के आसपास इन्होंने शुरू किया। ठीक है, सो संविधान दिवस और कॉन्स्टिट्यूशन डे वी सेलिब्रेट एट एवरी ईयर 26 नवंबर 1949। तो कैन एनीबडी टेल मी कि हम लाइक व्हाई वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे? We celebrate Republic Day on 26 January 1950 because our constitution, जो rules regulation हमने लिखे, हमने अडॉप्ट तो कर लिया 1949 में, बट उसको लागू किया, उसको came into force किया on 26 January 1950. Okay, so I hope you have like we have left these several paths like justice क्या होती है, liberty क्या होती है, equality, fraternity क्या होती है। fraternity की feeling हमको कैसे दिखती है? सिंगल सिटीजनशिप। We have a single citizenship, एक ही सिटीजन, हम लोग इंडियन है, एक ही सिटीजनशिप है अपने पास। कोई ऐसा तो नहीं है कि मैं महाराष्ट्र से हूँ तो महाराष्ट्र का सिटीजनशिप रहेगा और मेरे पास इंडिया का अलग से रहेगा। तो वी डोंट हैव अ ड्यूअल सिटीजनशिप। यूएसए हैज अ ड्यूअल सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट, अपने पास एक ही सिटीजनशिप है, तो वो फ्रेटर्निटी की फीलिंग दिखती है। लाइक फ्रेटर्निटी की फीलिंग आपको कैसे दिखती है? खेलो मतलब खेल प्रोग्राम में खेलो उत्सव हो रहा है, खेल उत्सव हो रहा है बहुत सारे। फ्रेटर्निटी की हर घर तिरंगा, आपको याद होगा व्हेन वी हैव 15 अगस्त, तो 15 अगस्त के वो एक वीक में हर घर तिरंगा इनिशिएटिव चलता है। मोदी जी कहते हैं सबको झंडा लगाना अपने घरों के बाहर, गाड़ियों में लगाना झंडे। तो इट गेट सेंस ऑफ ब्रदरहुड एज वेल एज सिस्टरहुड। वेरी गुड। किसने लिखा सिस्टरहुड? क्यों नहीं, सिस्टरहुड भी है। तो फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एज वेल एज फीलिंग ऑफ सिस्टरहुड। ओके, so feeling of brotherhood as well as feeling of sisterhood, it is the fraternity feeling. So however I have like mentioning, we'll take these some topic like these are left, we'll take in the next class, and however we have to take some MCQ more. ठीक है, देखिए see what was the exact constitutional status on 26 January 26 January को क्या था? तो क्या था? सवरन तो था, डेमोक्रेटिक था, रिपब्लिक था, सेकुलर बाद में आया 1976 से 42nd, सोशलिस्ट भी बाद में आया, सेकुलर भी बाद में आया। ठीक है, तो इट वुड बी बी 2021 में। इजी है कि नहीं? एग्जाम आसान है जब आप एग्जाम को समझ के पढ़ोगे कि कैसे क्वेश्चंस बार बार पूछते हैं। ठीक है, देखिए लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, दैट इंस्पिरेशन वाज डिराइव्ड फ्रॉम वेयर? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। मैंने आपको बताया फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक, 1979 में पूछा। सी हाउएवर आई हैव ट्राइड कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी के मिल जाए, बट इफ यू नीड लाइक फॉर अदर एग्जाम आल्सो तो वी कैन डिस्कस अदर एग्जाम्स एमसीक्यू आल्सो, और मैं आपको एमसीक्यू तो देता ही रहूंगा बहुत सारे। ठीक है, सो वी हैव ट्राइड कि आई हैव ट्राइड लाइक कि आपको प्रीएम्बल अच्छे से समझ में आ जाए। सो प्रीएम्बल इज
द एस्पिरेशन, आइडियल एंड इंटेंट, इट इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हाँ, इट इज द गेट ऑफ द योर बिल्डिंग. ठीक है, इट इज द गेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, फ्रंट गेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. प्रियम्बल पार्ट है. चलिए, आई विल टेक सम क्वेश्चंस एंड यू हैव टू गिव आंसर. लाइक प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. यस, वेरी गुड. प्रियम्बल का कोई लीगल इफेक्ट है? नहीं. प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं? हाँ. अमेंड किया है? हाँ. किससे किया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन में 1976. और बताइए, क्या हम किसी देश को एक्वायर कर सकते हैं? हाँ. क्या हम किसी देश को अपना कोई लैंड दे सकते हैं? हाँ. हम कॉमनवेल्थ मेंबर है? हाँ. क्या इट डज मीन वॉन्ट कि हमारी सॉवरेनिटी पे कोई इम्पैक्ट कर रहा है? नहीं. ओके, सो आई हैव ट्राइड कि आपको प्रियम्बल समझ जाए. सो वी हैव लेफ्ट दिस पार्ट. विल ट्राई कि हम इन द नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू दिस टॉपिक. ओके, सो this was the first class that we have taken about preamble. We'll try in the upcoming classes. We'll make sure कि आपको और like you will take several other topics that are left of preamble and some MCQ with the preamble. So we'll able to topic भी आपका हो गया, MCQ हो गया, और अगर मेंस का will also solve कि मेंस का आपको आंसर राइटिंग भी दे दिया जाएगा और आप मेंस के भी आंसर राइटिंग लिख सकते हो. ठीक है, so this was a class. Hope आपको क्लास में मजा आया, पढ़ने में अच्छा लगा. ठीक है, तो कोशिश करो कल फिर आना है सबको. ठीक है, कोई छुट्टी नहीं मारेगा. विल मीट टुमारो के अगेन. ठीक है, घर पे ख्याल रखिए, आप पढ़ाई में ध्यान दीजिए. मेक श्योर यू आर सॉल्विंग एमसीक्यू एवरी डे. जो आपको होमवर्क दे रहा है आप रिवाइज कीजिए और एक ही अपना लक्ष्य, दैट इज आर सिलेक्शन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज सिलेक्शन एज ऑफ नाउ. अभी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद यही है कि हमारा क्या होना चाहिए? सिलेक्शन. तो उम्मीद है हम कल फिर मिलेंगे. ठीक है, चले फिर हम. हाँ चलिए, लिखिए कमेंट में, लिखिए वी विल कम टुमारो. लिखो वी विल कम टुमारो. ठीक है, सो मैं भी लिख देता हूँ आपको. 3 बार लिख के जाइए कमेंट में. सी मेक श्योर सब लोग लिखेंगे वी विल. 3 बार लिख के ही जाना है. ठीक है, ठीक है, थैंक यू. आपको मजा आया. विल मीट टुमारो. ठीक है, मेक श्योर आप रिवाइज कीजिए, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए थोड़ा सा, और इफ एनीबॉडी हैव अ डाउट दे कैन टुमारो विल डिस्कस. ओके, थैंक यू. सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल. ओके, थैंक यू.